نرگس کے ساتھ رہتے ہوئے نعیم نے چند ہفتے ایک سہانے خواب کی طرح گزار دیے۔ ان وادیوں اور پہاڑوں میں فطرت کا ہر منظر ان کے لیے اس کیف آور ہوا خواب کی کیفیت کو زیادہ مؤثر بنا رہا تھا۔ اس خواب کی رنگینی میں محو ہو کر نعیم نے گھر جانے کا ارادہ چند دنوں کے لیے ملتوی کر دیا، لیکن اس کے دل کی کیفیت دیر تک نہ رہی۔ ایک دن اس نے نیند سے بیدار ہوتے ہی نرگس سے کہا، نرگس، میں حیران ہوں کہ میں اتنے دن یہاں کیوں کر گزار دیے۔ اب میرے خیال میں ہمیں بہت جلد رخصت ہو جانا چاہیے۔ ہماری بستی یہاں سے سینکڑوں میل دور ہے، وہاں پہنچ کر تمہارا دل اداس تو نہ ہو جائے گا؟ اداس؟ کاش آپ کو معلوم ہوتا کہ میرے دل میں آپ کا وطن دیکھنے کا کس قدر اشتیاق ہے، اور میں اس مقدس خاک کو آنکھوں میں لگانے کے لیے کتنی بے قرار ہوں۔ اچھا، ہم پرسوں یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ نعیم یہ کہہ کر اٹھا اور صبح کی نماز کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ اتنے میں ہومان داخل ہوا۔ اس نے بتایا کہ بستی کا ایک سپاہی برمک نامی قتیبہ بن مسلم کا پیغام لے کر آیا ہے۔ نعیم قدرے پریشان ہو کر باہر نکلا۔ برمک گھوڑے کی باگ تھامے کھڑا تھا۔ نعیم کو شک گزرا کہ وہ نیک خبر لے کر نہیں آیا۔ نعیم کی طرف سے کسی سوال کا انتظار کیے بغیر برمک نے کہا، آپ میرے ساتھ چلنے کے لیے فوراً تیار ہو جائیں۔ خیریت تو ہے؟ نعیم نے سوال کیا۔ برمک نے قتیبہ کا خط پیش کیا۔ نعیم نے خط کو پڑھا۔ خط کا مضمون یہ تھا، تمہیں سخت تاکید ہے کہ خط ملتے ہی سمرقند پہنچ جاؤ۔ تمہیں یہ حکم ان حالات کے پیش نظر دیا جاتا ہے جو امیر المومنین کی وفات کے باعث پیدا ہو رہے ہیں۔ تفصیلی حالات برمک بتلا دے گا۔ نعیم نے حیران ہو کر برمک سے سوال کیا، سمرقند سے بغاوت کی خبر تو نہیں آئی؟ نہیں، برمک نے جواب دیا۔ تو پھر مجھے سمرقند پہنچنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ قتیبہ اپنے تمام جرنیلوں سے کوئی مشورہ کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ تو کاشغر میں تھے۔ نہیں، وہ بعض حالات کی بنا پر سمرقند چلے گئے ہیں۔ کیسے حالات؟ برمک نے کہا، امیر المومنین کی وفات کے بعد ان کے جانشین خلیفہ سلیمان نے حجاج بن یوسف کے مقرر کیے ہوئے بہت سے افسروں کو قتل کروا دیا۔ موسیٰ بن نصیر کے بیٹے اور محمد بن قاسم فاتح سندھ کو مروا دیا۔ ہمارے سپہ سالار کو بھی دربار خلافت میں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے۔ وہ وہاں جانے میں خطرہ محسوس کرتے ہیں کیونکہ نئے خلیفہ سے بھلائی کی امید نہیں۔ وہ اپنے تمام سالاروں کو جمع کر کے مشورہ لینا چاہتے ہیں، اس لیے آپ کو بلانے کے لیے بھیجا ہے۔ نعیم برمک کی گفتگو کا آخری حصہ زیادہ توجہ سے نہ سن سکا۔ محمد بن قاسم کے قتل کی خبر کے بعد اسے باقی گفتگو میں کوئی بات زیادہ اہم محسوس نہ ہوئی۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، برمک، تم بہت بری خبر لائے ہو، ٹھہرو، میں تیار ہوا ہوں۔ نعیم واپس جا کر نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ نرگس اس کا مغموم چہرہ دیکھ کر ہزاروں توہمات پیدا کر چکے تھے۔ جب نعیم نے نماز ختم کی تو اس نے جرأت کر کے پوچھا کہ آپ بہت پریشان ہیں، کیسی خبر لایا ہے وہ؟ نرگس، ہم ابھی سمرقند جا رہے ہیں، تم فوراً تیار ہو جاؤ۔ نرگس کا مغموم چہرہ نعیم کے اس جواب پر خوشی سے چمک اٹھا۔ اس کے دل میں نعیم کے ساتھ رہ کر زندگی کے تمام خطرات کا مقابلہ کرنے کی جرأت موجود تھی، لیکن مصیبت میں اس سے تھوڑی دیر کے لیے جدا ہونا اس کے لیے موت سے زیادہ خوفناک تھا۔ اس کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ نعیم کے ساتھ جا رہی ہے۔ کہاں اور کن حالات میں؟ وہ ان سوالات کا جواب پوچھنے سے بے نیاز تھی۔ سمرقند کے قلعے کے ایک کمرے میں قتیبہ اپنے منظور نظر سالاروں کے درمیان بیٹھا ان سے باتیں کر رہا تھا۔ کمرے کی دیواروں کے ساتھ چاروں مختلف ممالک کے بڑے بڑے نقشے آویزاں تھے۔ قتیبہ نے چین کے نقشے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہم اس وسیع ملک کو چند مہینوں میں فتح کر لیتے، لیکن نئے خلیفہ نے مجھے برے وقت واپس بلایا ہے۔ تم جانتے ہو وہاں میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ ایک جرنیل نے جواب دیا، وہی سلوک جو محمد بن قاسم کے ساتھ کیا گیا ہے۔ لیکن کیوں؟ قتیبہ نے پرجوش آواز میں کہا، مسلمانوں کو ابھی میری خدمات کی ضرورت ہے۔ چین کو فتح کرنے سے پہلے اپنے آپ کو خلیفہ کے حوالے نہیں کروں گا۔ قتیبہ نے پھر نقشہ دیکھنا شروع کر دیا۔ اچانک نعیم کمرے میں داخل ہوا۔ قتیبہ نے بڑھ کر اس سے مصافحہ کیا اور کہا، افسوس تمہیں بے وقت تکلیف دی گئی۔ اکیلے آئے ہو یا؟ میں اپنی بیوی کو بھی ساتھ لایا ہوں۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید مجھے دمشق جانا پڑے۔ دمشق؟ نہیں، ایلچی نے شاید تمہیں غلط بتایا ہے۔ دمشق میں تمہیں نہیں، مجھے بلایا گیا ہے۔ نئے خلیفہ کو میرے سر کی ضرورت ہے، اسی لیے تو میں وہاں جانا ضروری خیال کرتا ہوں۔ نعیم، قتیبہ نے پیار سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا،
میں نے تمہیں اس لیے نہیں بلایا کہ تم میری جگہ دمشق جاؤ۔ جان اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، بلکہ میں اپنے ہر ایک سپاہی کی جان اپنی جان سے زیادہ قیمتی سمجھتا ہوں۔ میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تم بہت حد تک معاملہ فہم ہو۔ میں تم سے اور اپنے باقی جہاندیدہ دوستوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے۔ امیر المومنین میرے خون کا پیاسا ہے۔ نعیم نے اطمینان سے جواب دیا، خلیفہ وقت کے حکم سے سرتابی ایک مسلمان سپاہی کے شایان شان نہیں ہے۔ تم محمد بن قاسم کا انجام جانتے ہوئے بھی مجھے یہ مشورہ دیتے ہو کہ میں دمشق جاؤں اور اپنے ہاتھوں سے اپنا سر خلیفہ کے سامنے پیش کروں۔ میرا خیال ہے خلیفۃ المسلمین آپ کے ساتھ اس درجہ برا سلوک نہیں کرے گا، لیکن اگر یہاں تک نوبت آ بھی جائے تو ترکستان کے سب سے بڑے جرنیل کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ طاط امیر میں کسی سے پیچھے نہیں۔ قتیبہ نے کہا، میں موت سے نہیں گھبراتا، لیکن یہ محسوس کرتا ہوں کہ اسلامی دنیا کو میری ضرورت ہے۔ چین کو فتح کرنے سے پہلے میں اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنے سے گھبراتا ہوں۔ میں ایک اسیر کی موت نہیں بلکہ ایک بہادر کی موت چاہتا ہوں۔ دربار خلافت میں شاید آپ کے متعلق کوئی غلط فہمی پیدا ہو گئی ہو، بہت ممکن ہے وہ دور ہو جائے۔ آپ فی الحال یہیں رہیں اور مجھے دمشق جانے کی اجازت دیں۔ قتیبہ نے کہا، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے تمہاری جان خطرے میں ڈالوں؟ تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں یہیں ٹھہروں گا۔ اگر امیر المؤمنین بلا وجہ میرے ساتھ محمد بن قاسم کا سلوک کرنا چاہتے ہیں تو میری تلوار میری حفاظت کرے گی۔ یہ تلوار آپ کو دربار خلافت سے عطا ہوئی تھی، اسے خلیفہ کے خلاف استعمال کرنے کا خیال تک بھی دل میں نہ لائیں۔ مجھے وہاں جانے کی اجازت دیں، مجھے یقین ہے کہ وہ میری بات سنیں گے اور میں ان کی غلط فہمی دور کر سکوں گا۔ میرے متعلق کوئی خدشہ دل میں نہ لائیں۔ دمشق میں مجھے جاننے والے بہت کم ہیں، وہاں میرا کوئی دشمن نہیں، میں ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے وہاں جاؤں گا۔ نعیم، میں اپنے لیے تمہیں کسی خطرے میں پڑنے کی اجازت نہیں دوں گا، یہ آپ کے لیے نہیں۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ امیر المومنین کی حرکات سے اسلامی جمعیت کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہے۔ میرا فرض ہے کہ میں انہیں اس خطرے سے آگاہ کروں۔ آپ مجھے اجازت دیں۔ قتیبہ نے باقی جرنیلوں کی طرف دیکھا اور ان کی رائے دریافت کی۔ حبیرہ نے کہا، تمام عمر کی قربانیوں کے بعد ہمیں زندگی کے آخری دنوں میں باغیوں کی جماعت میں نام نہیں لکھوانا چاہیے۔ نعیم کی زبان کی تاثیر سے ہم واقف ہیں، آپ اسے دمشق جانے کی اجازت دیں۔ قتیبہ نے تھوڑی دیر پیشانی پر ہاتھ رکھ کر سوچنے کے بعد کہا، اچھا نہیں، تم جاؤ۔ دربار خلافت میں میری طرف سے یہ عرض کر دینا کہ میں چین کی فتح کے بعد حاضر ہو جاؤں۔ میں یہاں سے کل صبح روانہ ہو جاؤں گا، لیکن تم نے ابھی بتایا تھا کہ تم اپنی بیوی کو ساتھ لائے ہو، میں اسے اپنے ساتھ ہی لے جاؤں گا۔ نعیم نے بات کاٹتے ہوئے جواب دیا، دمشق میں اپنا فرض پورا کرنے کے بعد میں اسے اپنے گھر پہنچا کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اگلے دن نعیم اور نرگس 10 اور سپاہیوں کے ساتھ دمشق روانہ ہو گئے۔ نعیم نے بعض مصلحتوں کے پیش نظر برمک کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ نعیم نے دمشق پہنچ کر ایک سرائے میں اپنے ساتھیوں کے قیام کا بندوبست کیا، اپنے لیے ایک مکان کرائے پر لیا اور برمک کو نرگس کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر خود خلیفہ کے محل میں حاضر ہوا اور باریابی کی اجازت چاہی۔ وہاں سے ایک دن انتظار کرنے کا حکم ملا۔ دوسرے دن دربار خلافت میں حاضر ہونے سے پہلے نعیم نے برمک سے کہا، اگر کسی وجہ سے مجھے دربار خلافت میں دیر لگ جائے تو گھر کی حفاظت کرنا، اور جب تک میں نہ آؤں نرگس کا خیال رکھنا۔ اس نے نرگس کو بھی تسلی دی کہ اس کی غیر موجودگی میں گھبرا نہ جائے، وہاں کوئی خطرناک معاملہ پیش نہیں آئے گا۔ نرگس نے اطمینان سے جواب دیا، میں آپ کے آنے تک ان اونچے اونچے مکانوں کو گنتی رہوں گی۔ نعیم کو کچھ دیر قصر خلافت کے دروازے پر ٹھہرنا پڑا۔ بالآخر دربان کے اشارے سے وہ دربار خلافت میں حاضر ہوا اور خلیفہ کو سلام کر کے ادب سے کھڑا ہوا۔ خلیفہ کے دائیں اور بائیں جانب چند معززین بیٹھے تھے، لیکن نعیم نے کسی کی طرف دھیان نہ دیا۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے چہرے پر کچھ ایسا جلال تھا کہ بہادر سے بہادر لوگ بھی اس سے آنکھ ملا کر بات کرنے کی جرت نہ کرتے تھے۔ سلیمان مسند خلافت پر رونق افزوں تھا، اس کے چہرے پر تفکرات کے گہرے اثرات تھے۔ اس نے ابن صادق کی طرف دیکھا اور کہا، ابھی تک ترکستان سے کوئی خبر نہیں آئی۔ امیر المؤمنین بے فکر رہیں، انشاءاللہ ترکستان سے پہلی خبر کے ساتھ قتیبہ کا سر بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ دیکھیں،
सुलेमान ने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा। कुछ देर बाद एक दरबान ने हाजिर होकर अर्ज किया कि स्पेन से एक सालार अब्दुल्ला नामी हाजिर हुआ है। हाँ, उसे ले आओ, खलीफा ने हुक्म दिया। दरबान चला गया और अब्दुल्ला हाजिर हुआ। खलीफा ने जरा ऊपर उठते हुए दायां हाथ आगे बढ़ाया। अब्दुल्ला आगे बढ़ा और खलीफा से मुसाफिहा करके अदब से खड़ा हो गया। तुम्हारा नाम अब्दुल्ला है? हाँ अमीरुल मोमिनीन। मैंने स्पेन में तुम्हारे मार्कों की तारीफ सुनी है। तुम तजर्बाकार नौजवान मालूम होते हो। स्पेन की फौज में कब भर्ती हुए थे? अमीरुल मोमिनीन, मैं तारक के साथ स्पेन के साहल पर पहुंचा था और उसके बाद वहीं रहा। खूब। तारक के मुतालिक तुम्हारा क्या ख्याल है? अमीरुल मोमिनीन, वो सही मानों में एक मुजाहिद है। और मूसा के मुतालिक तुम्हारी क्या राय है? अमीरुल मोमिनीन, एक सिपाही दूसरे सिपाही के मुतालिक बुरी राय नहीं दे सकता। मैं बजाते खुद मूसा का मद्दाह हूँ और उसके मुतालिक कोई बुरा लफ्ज मुंह से निकालना गुनाह समझता हूँ। इब्ने कासिम के मुतालिक तुम्हारा क्या ख्याल है? अमीरुल मोमिनीन, मैं उसके मुतालिक इससे ज्यादा नहीं जानता कि वो एक बहादुर सिपाही था। तुम ये जानते हो कि मैं इन लोगों से किस कदर मुतनफर हूँ? सुलेमान ने कहा। अमीरुल मोमिनीन, मैं आपका एहतराम करता हूँ, लेकिन मैं मुनाफिक नहीं हूँ। आपने मेरी जाती राय दरियाफ्त की थी, वो मैंने बयान कर दी। मैं तुम्हारी इस बात की कदर करता हूँ और चूंकि तुमने मेरे खिलाफ किसी साजिश में हिस्सा नहीं लिया, मैं तुम पर एतमाद करता हूँ। अमीरुल मोमिनीन, मुझे इस एतमाद के काबिल पाएंगे? बहुत अच्छा। हमें कुस्तुनतुनिया की मुहिम के लिए एक तजर्बाकार जनरल की जरूरत थी। वहाँ हमारी फौजों को कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। तुम्हें स्पेन से इसीलिए बुलाया गया है कि तुम बहुत जल्द यहाँ से 5000 सिपाही लेकर कुस्तुनतुनिया की तरफ रवाना हो जाओ। सुलेमान ने एक नक्शा उठाकर खोला और अब्दुल्ला को अपने करीब बुलाकर कुस्तुनतुनिया पर हमले के मुख्तलिफ तरीकों पर एक लंबी चौड़ी बहस शुरू कर दी। दरबान ने आकर एक खत पेश किया। सुलेमान ने जल्दी से खत खोलकर पढ़ा और इब्ने सादिक की तरफ बढ़ाते हुए कहा, कुतैबा कत्ल हो चुका है और चंद दिनों तक उसका सर यहाँ पहुँच जाएगा। मुबारक हो। इब्ने सादिक ने खलीफा के हाथ से खत लेकर पढ़ते हुए कहा। और आपने उस नौजवान के मुतल्लिक क्या सोचा? कौन सा नौजवान? वही जो कुतैबा की तरफ से पिछले दिनों यहाँ आया था। बहुत खतरनाक आदमी मालूम होता है। हाँ, उसके मुतल्लिक भी हम अनकरीब फैसला करेंगे। खलीफा फिर अब्दुल्ला की तरफ मुतवज्जे हुआ। तुम्हारी तजावीज मुझे कामयाब नजर आती हैं। तुम फौरन रवाना हो जाओ, मैं कल ही रवाना हो जाऊंगा। अब्दुल्ला सलाम करके बाहर निकल गया। अब्दुल्ला दरबार खिलाफत से निकलकर ज्यादा दूर नहीं गया था कि पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर ठहरा लिया। अब्दुल्ला ने पीछे मुड़कर देखा तो एक खुशवज़े नौजवान उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। अब्दुल्ला ने उसे गले लगा लिया। यूसुफ, तुम यहाँ कैसे? तुम स्पेन से ऐसे गायब हुए कि फिर तुम्हारी शक्ल तक दिखाई न दी। मुझे यहाँ कोतवाल का ओहदा दिया गया है। आज तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। अब्दुल्ला, तुम पहले आदमी हो जिसकी बेबाकी पर खलीफा खफा नहीं हुआ। ये इसलिए कि उसे मेरी जरूरत थी। अब्दुल्ला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम वही थे? मैं एक तरफ खड़ा था, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। तुम सुबह जा रहे हो, तुमने सुन ही लिया होगा। आज रात तो मेरे पास ठहरोगे ना? मुझे तुम्हारे पास ठहरते हुए बहुत खुशी होती, लेकिन अली सुबह लश्कर को कूच की तैयारी का हुक्म देना है, इसलिए मेरा मुस्तकिर में ठहरना ज्यादा मुनासिब होगा। अब्दुल्ला, चलो अपनी फौज को तैयारी का हुक्म दे आओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। हम थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। इतनी देर के बाद मिले हैं, बातें करेंगे। अच्छा चलो। अब्दुल्ला और यूसुफ बातें करते हुए लश्कर की क़यामगाह में दाखिल हुए। अब्दुल्ला ने अमीर लश्कर को खलीफा का हुक्मनामा दिया और 5000 सिपाहियों को अली सुबह कूच के लिए तैयार रहने की हिदायत दी और यूसुफ के साथ वापस शहर में चला आया। रात के वक्त यूसुफ के मकान पर अब्दुल्ला और यूसुफ खाना खाने के बाद बातों में मशगूल थे। वो कुतैबा बिन मुस्लिम बाहली की फतूहात का तज़किरा करते हुए उसके हसरतनाक अंजाम पर इजहार अफसोस कर रहे थे। अब्दुल्ला ने सवाल किया, वो शख्स कौन था जिसने अमीरुल मोमिनीन को कुतैबा के कत्ल की खबर आने पर मुबारकबाद दी थी? यूसुफ ने जवाब दिया, वो तमाम दमिश्क के लिए एक मुअम्मा है। मैं उसके मुतल्लिक इससे ज्यादा नहीं जानता कि उसका नाम इब्ने सादक है और खलीफा वलीद ने उसके सर की कीमत 1000 अशरफी मुकर्रर की थी। खलीफा के वफात के बाद ये किसी गोशा से बाहर निकलकर सुलेमान के पास पहुंचा। नए खलीफा ने इसका बेहद एहतराम किया और अब ये हालत है कि खलीफा इससे ज्यादा किसी की नहीं सुनता। अब्दुल्ला ने कहा, मुद्दत हुई मैंने इसके मुतल्लिक कुछ सुना था
दरबार खिलाफत में इसका इक़्तिदार तमाम मुसलमानों के लिए खतरे का बायस होगा। मौजूदा हालात ये जाहिर कर रहे हैं कि हमारे लिए बहुत बुरा वक्त आ रहा है। यूसुफ ने कहा, मैंने इससे ज्यादा संगदिल और कमीना इंसान आज तक नहीं देखा। मोहम्मद बिन कासिम के अलमनाक अंजाम पर कोई शख्स ऐसा ना था जिसने आंसू ना बहाए हों। खुद सुलेमान ने इस कदर सख्त दिल होने के बावजूद किसी से कई दिन बात न की, लेकिन ये शख्स था जो उस दिन बेहद बशाश था। अगर मेरे बस में हो तो इसे कुत्तों से निचवा डालो। ये शख्स जिसकी तरफ उंगली उठाता है खलीफा उसे जल्लाद के सुपुर्द कर देते हैं। कुतैबा को कत्ल करने का मशवरा इसी ने दिया था और आज तुमने सुना। ये शख्स खलीफा को एक कैदी याद दिला रहा था। हाँ, वो कौन है? वो कुतैबा का एक नौजवान जर्नैल है। जब उस शख्स का ख्याल आता है मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे उसका अंजाम मोहम्मद बिन कासिम से ज्यादा अलमनाक नजर आता है। अब्दुल्ला, मेरा जी चाहता है कि नौकरी छोड़कर फिर फौज में शामिल हो जाऊं। मेरा ज़मीर मुझे हर वक्त कोसता रहता है। मोहम्मद बिन कासिम पर अरब के तमाम बच्चे और बूढ़े फख्र करते थे, लेकिन इसके साथ वो सुलूक किया गया जो बदतरीन मुजरम के साथ भी नहीं किया जाता। जब उसे वासत के कैदखाना में भेजा गया तो मुझे भी इसकी निगरानी के लिए वहां पहुंचने का हुक्म हुआ। वासत का हाकम साले पहले ही उसके खून का प्यासा था। उसने मोहम्मद बिन कासिम को सख्त अजियतें दी। चंद दिन बाद इब्ने सादक भी वहां पहुंच गया। ये शख्स हर रोज मोहम्मद बिन कासिम का दिल दुखाने के लिए कोई न कोई तरीका सोचता। मुझे वो वक्त नहीं भूलता जब मोहम्मद बिन कासिम कत्ल से एक दिन पहले कैदखाने की कोठड़ी में ठहर रहा था। मैं लोहे की सलाखों से बाहर खड़ा इसकी हर हरकत का मुआयना कर रहा था। इसके खूबसूरत चेहरे की मतानत देखकर मेरा दिल चाहता था कि अंदर जाकर इसके पाँव चूम लूं। रात के वक्त मुझे सख्त निगरानी का हुक्म था। मैंने इसकी अंधेरी कोठड़ी में शम्मा जला दी। ईशा की नमाज अदा करने के बाद उसने आहिस्ता आहिस्ता टहलना शुरू कर दिया। रात गुजर चुकी थी। ये जलील कुत्ता इब्ने सादक कैदखाने के फाटक पर आकर चिल्लाने लगा। पहरेदार ने दरवाजा खोला और इब्ने सादक ने मेरे पास आकर कहा, मैं मोहम्मद बिन कासिम से मिलना चाहता हूँ। मैंने जवाब दिया, साले का हुक्म है कि किसी को भी उससे मुलाकात की इजाजत ना दी जाए। उसने जोश में आकर कहा, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं कदरे घबरा गया। उसने लहजा बदलकर मुझे तसल्ली देते हुए कहा कि साले तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मैंने मजबूरन मोहम्मद बिन कासिम की कोठड़ी की तरफ इशारा किया। इब्ने सादक आगे बढ़कर दरवाजा की सलाखों में से उसे झांकने लगा। मोहम्मद बिन कासिम अपने ख्यालात में महब था। उसने उसकी तरफ तवज्जो ना की। इब्ने सादक ने हकारत आमेज लहजे में कहा, हज्जाज के लाडले बेटे, तुम्हारा क्या हाल है? मोहम्मद बिन कासिम ने चौंक कर उसकी तरफ देखा लेकिन कोई बात ना की। मुझे पहचानते हो? इब्ने सादक ने दोबारा सवाल किया। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, मुझे याद नहीं आप कौन है। उसने कहा, देखा तुम भूल गए, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूला। मोहम्मद बिन कासिम ने आगे बढ़कर दरवाजे के सलाखों को पकड़ते हुए इब्ने सादक की तरफ गौर से देखने के बाद कहा, शायद मैंने कहीं आपको देखा है लेकिन याद नहीं। इब्ने सादक ने बगैर कुछ कहे अपनी छड़ी उसके हाथ पर दे मारी और उसके मुंह पर थूक दिया। मैं हैरान था कि उसके चेहरे पर गुस्से के आसार तक पैदा न हुए। उसने अपनी कमीज के दामन से अपने चेहरे को पोंछते हुए कहा, बूढ़े आदमी, मैंने तुम्हारी उम्र के किसी आदमी को कभी तकलीफ नहीं दी। अगर मैंने लाइल्मी में तुम्हें कोई दुख पहुंचाया हो तो मैं खुशी से तुम्हें एक बार और थूकने की इजाजत देता हूँ। मैं सच कहता हूँ कि उस वक्त मोहम्मद बिन कासिम के सामने अगर पत्थर भी होता तो पिघल कर रह जाता। मेरा जी चाहता है कि मैं इब्ने सादक की दाढ़ी नोच लूं, लेकिन शायद ये दरबार खिलाफत का एहतराम था या मेरी बुज़दिली कि मैं कुछ न कर सका। इसके बाद इब्ने सादक गालियां बकता हुआ वापस चला आया। आधी रात के करीब मैंने कैदखाने का चक्कर लगाते हुए देखा कि वो दुजानों बैठा हाथ उठाकर दुआ कर रहा है। उससे रहा ना गया। मैं कफल खोलकर कोठड़ी के अंदर दाखिल हुआ। उसने दुआ खत्म करके मेरी तरफ देखा। उठिए, मैंने कहा। क्यों? उसने हैरान होकर सवाल किया। मैंने कहा, मैं इस गुनाह में हिस्सा नहीं लेना चाहता, मैं आपकी जान बचाना चाहता हूँ। उसने बैठे बैठे हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे अपने करीब बिठा लिया और कहा, अव्वल तो मुझे इस बात का यकीन नहीं कि अमीरुल मोमिनीन मेरे कत्ल का हुक्म सादर फरमाएंगे। अगर ये हुआ भी तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारी जान खतरे में डाल दूंगा? मैंने कहा, मेरी जान खतरे में नहीं पड़ेगी, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। मेरे पास 2 नहायत तेज रफ्तार घोड़े हैं। हम बहुत जल्द यहाँ से दूर निकल जाएंगे। हम कोफा और बसरा के लोगों की पनाह लेंगे। वो लोग आपके लिए खून का आखिरी कतरा तक बहाने के लिए तैयार हैं। इस्लामी दुनिया के तमाम बड़े बड़े शहर आपकी आवाज पर लब्बैक कहेंगे। उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं बगावत की आग फैलाकर मुसलमानों की तबाही का तमाशा देखूंगा? नहीं, ये नहीं होगा। मैं उसे एक बुज़दिली ख्याल करता हूँ। बहादुरों को बहादुरों की मौत मरना चाहिए। मैं अपनी जान की हिफाजत के लिए हजारों मुसलमानों की जानें खतरे में नहीं डाल सकता।
तुम ये चाहते हो कि दुनिया मोहम्मद बिन कासिम को एक मुजाहिद के नाम से याद करने की बजाय एक बागी के हैं? मैंने कहा, लेकिन मुसलमानों को आप जैसे बहादुर सिपाहियों की जरूरत है। उसने कहा, मुसलमानों में मेरे जैसे सिपाहियों की कमी नहीं। इस्लाम को थोड़ा बहुत समझने वाला शख्स भी एक बेहतरीन सिपाही के औसाफ पैदा कर सकता है। मेरे पास और अल्फाज नहीं थे। मैंने उठते हुए कहा, माफ कीजिए, आप मेरे ख्याल से बहुत बुलंद निकले। उसने उठकर मेरे साथ हाथ मिलाया और कहा, दरबार खिलाफत मुसलमानों की ताकत का मरकज है। इससे बेवफाई का ख्याल कभी अपने दिल में ना लाना। यूसुफ ने बात खत्म की। अब्दुल्ला ने उसकी अशक आलूद आंखों की तरफ देखते हुए कहा, वो एक होनहार मुजाहिद थे। यूसुफ ने कहा, अब मेरे लिए एक और बात सुहाने रूह बनी हुई है। मैं अभी आपसे कुतैबा बिन मुस्लिम बाहली के एक जर्नैल का तज़किरा कर रहा था। उसकी शक्ल सूरत आपसे मिलती जुलती है, कद जरा आपसे लंबा है। मुझे उसके साथ बहुत उनस हो गया है, और खुदा न करे अगर उसका अंजाम भी वही हुआ तो मैं बगावत का आलम बुलंद कर दूंगा। उस बेचारे का बस इतना कसूर है कि उसने मोहम्मद बिन कासिम और कुतैबा के मुतल्लिक चंद अच्छे अल्फाज कह दिए। अब इब्ने सादक हर रोज कैद खाने में जाकर उसका दिल दुखाता है। मैं महसूस करता हूँ कि उसे इब्ने सादक की बातों से बेहद तकलीफ होती है। इसलिए मुझसे कई बार पूछा है कि उसे कब आजाद किया जाएगा। मुझे डर है कि इब्ने सादक के इसरार से खलीफा उसे आजाद करने की बजाय कत्ल कर डालेगा। मोहम्मद बिन कासिम के साथ और दोस्त भी कैद में हैं, लेकिन जो सलूक उसके साथ किया जाता है शर्मनाक है। उसकी तातारी बीवी भी उसके साथ आई है और वो अपने एक रिश्तेदार के साथ शहर में रहती है। उसने चंद रोज हुए मुझे अपनी बीवी का पता दिया था। उसका नाम शायद नरगिस है। मेरी खाला का मकान उसके मकान के करीब ही है। खाला को इसके साथ बहुत उनस हो गया है। वो सारा दिन वहां रहती है और मुझे मजबूर करती है कि मैं उसके शोहर को बचाने की कोई सूरत निकालूं। मैं हैरान हूँ कि क्या करूं और किस तरह उसकी जान बचाऊं। अब्दुल्ला गहरी सोच में डूबा यूसुफ की बातें सुन रहा था। उसके दिल में तरह तरह के ख्यालात पैदा हो रहे थे। उसने यूसुफ से सवाल किया, उसकी शक्ल मुझसे मिलती जुलती है? हाँ, लेकिन वो आपसे जरा लंबा है। उसका नाम नाइम तो नहीं? अब्दुल्ला ने मगमूम लहजे में पूछा। हाँ नहीं, आप उसे जानते हैं? वो मेरा छोटा भाई है। मेरा छोटा भाई? उफ, मुझे ये मालूम ना था। अब्दुल्ला ने एक लम्हे की खामोशी के बाद कहा, अगर उसका नाम नाइम है और उसकी पेशानी मेरी पेशानी से कुशादा और उसकी नाक मेरी नाक से जरा पतली, उसकी आंखें मेरी आंखों से बड़ी और उसके होंठ मेरे होंठों के मुकाबले में पतले और खूबसूरत, उसका कद मेरे कद से जरा लंबा, उसका जिस्म मेरे जिस्म के मुकाबले में जरा पतला है, तो मैं कसम खा सकता हूँ कि वो मेरे भाई के सिवा कोई दूसरा नहीं हो सकता। वो कितनी देर से जेर हिरासत है? उसे कैद हुए कोई 2 महीने होने वाले हैं। अब्दुल्ला, अब हमें उसे बचाने की तदबीर करनी चाहिए। तुम अपनी जान को खतरे में डाले बगैर इसके लिए कुछ नहीं कर सकते? अब्दुल्ला ने कहा। अब्दुल्ला, तुम्हें याद है कि कुर्तबा के मुहासरे में जब मैं जख्मों से चूर था, तुमने अपनी जान खतरे में डालकर मेरी जान बचाई थी और तीरों की बारिश में लाशों के ढेर से मुझे उठा लाए थे। वो मेरा फर्ज था, तुम पर एहसान नहीं था। मैं भी इसे अपना फर्ज ख्याल करता हूँ, तुम पर एहसान नहीं समझता। अब्दुल्ला कुछ देर तक यूसुफ की आंखों में आंखें डालकर देखता रहा। वो कुछ कहने को था कि यूसुफ के हबशी गुलाम ज़ियाद ने आकर इत्तला दी कि इब्ने सादक दरवाजे पर खड़ा आपसे मिलना चाहता है। यूसुफ का चेहरा जर्द पड़ गया। उसने घबराकर अब्दुल्ला से कहा, आप दूसरे कमरे में चले जाएं, वो शक ना करें। अब्दुल्ला जल्दी से पिछले कमरे में चला गया। यूसुफ ने कमरे का दरवाजा बंद करने के बाद इत्मीनान का सांस लिया और ज़ियाद से कहा, उसे अंदर ले आओ। ज़ियाद चला गया और थोड़ी देर बाद इब्ने सादक दाखिल हुआ। इब्ने सादक ने कोई रस्मी गुफ्तगू शुरू करने के बजाय आते ही कहा, आप मुझे देखकर बहुत हैरान हुए होंगे। यूसुफ ने अपने होंठों पर एक मैना खेज तबस्सुम लाते हुए कहा, इस जगह क्या, मैं तो आपको हर जगह देखकर हैरान होता हूँ। आप तशरीफ रखें। शुक्रिया। इब्ने सादक ने चारों तरफ नजर दौड़ाकर अकबी कमरे के दरवाजे की तरफ टिकटकी बांधकर देखते हुए कहा, मैं आज बहुत मसरूफ हूँ, वो आपके दोस्त कहाँ हैं? यूसुफ ने परेशान होकर कहा, कौन से दोस्त? आप जानते हैं मैं कौन से दोस्त का मुतल्लक पूछ रहा हूँ। मुझे आपकी तरह इल्म गैब नहीं है। मेरा मतलब है कि नईम का भाई अब्दुल्ला कहाँ है? नईम के मुतल्लक मालूमात मुहैया करते हुए मैंने कई साल गुजार दिए हैं। आप जानते हैं कि मुझे उसके साथ किस कदर दिलचस्पी है? यूसुफ ने तुर्श लहजे में जवाब दिया, ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन मैं ये पूछने की जरूरत कर सकता हूँ कि आपको अब्दुल्ला के साथ क्या काम है? इब्ने सादक ने जवाब दिया, आपको ये भी मालूम हो जाएगा। पहले आप ये बताएं कि वो कहाँ है। मुझे क्या मालूम? ये जरूरी नहीं कि आपको किसी के साथ दिलचस्पी हो तो मैं भी उसकी जासूसी करता फिरूं। इब्ने सादक ने कहा, जब दरबार खिलाफत से बाहर निकला था आप उसके साथ थे।
जब लश्कर की क़यामगाह में पहुंचा तो आप उसके साथ थे। जब वो वापस शहर की तरफ आया था तो आप उसके साथ थे। मेरा ख्याल था कि अब भी वो आपके साथ होगा। वो यहाँ से खाना खाकर चला गया है। कब? अभी। किस तरफ? गालिबन लश्कर की क़यामगाह की तरफ। ये भी हो सकता है कि कैद खाने की तरफ गया हो या अपने भाई की बेवा को तसल्ली देने के लिए गया हो। भाई की बेवा? आपका मतलब है कि? इब्ने सादक ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए जवाब दिया, मेरा मतलब है कि वो कल तक बेवा हो जाएगी। मैं आपको अमीरुल मोमिनीन का ये हुक्म सुनाने आया हूँ कि मोहम्मद बिन कासिम के तमाम दोस्तों की अच्छी तरह निगरानी करें। कल उनके मुतल्लिक हुक्म सुनाया जाएगा और मैं अपनी तरफ से आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर आपको अपनी जान अजीज रखते हैं तो अब्दुल्ला के साथ मिलकर नईम की रिहाई की साजिश ना करें। आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं ऐसे साजिश कर सकता हूँ? यूसुफ ने गुस्से में आकर कहा, मुझको यकीन तो नहीं, लेकिन शायद अब्दुल्ला की दोस्ती का बास आपको मजबूर कर दे। आपने कैद खाने पर कितने सिपाही मुकर्रर किए हैं? यूसुफ ने जवाब दिया, 40, और मैं खुद भी वहां जा रहा हूँ। अगर हो सके तो चंद और सिपाही मुकर्रर कर दें, क्योंकि वो आखिरी वक्त पर भी फरार हो जाया करता है। आप इस कदर घबराते क्यों हैं? वो एक मामूली आदमी है। कैद खाने पर अगर 5000 आदमी भी हमला कर दे तो भी उसे छुड़ा कर ले जाना महाल है। मेरी फितरत मुझे आने वाले खतरा से आगाह कर देती है। अच्छा, मैं चलता हूँ। चंद और सिपाही के आपके पास भेज दूंगा, आप उनको अपनी नीम की कोठरी पर मुतय्यन कर दें। यूसुफ ने तसल्लियामेज़ लहजे में कहा, आप मुतमईन रहें, नए पहरेदारों की जरूरत नहीं, मैं खुद पहरा दूंगा। आप इतनी फिक्रमंद क्यों हैं? इब्ने सादक ने जवाब दिया, आपको शायद मालूम नहीं, उसकी रिहाई दूसरे मानों में मेरी मौत होगी। जब तक उसकी गर्दन पर जल्लाद की तलवार नहीं पड़ती मुझे चैन नहीं आ सकता। इब्ने सादक ने अपना फिक्रा खत्म किया ही था कि अकबी कमरे का दरवाजा यकायक खुला और अब्दुल्ला ने बाहर निकलते हुए कहा, और ये भी हो सकता है कि नईम की मौत से पहले आपको मौत की नींद सुला दिया जाए। इब्ने सादक चौंक कर पीछे हटा और चाहता था कि वहां से भाग निकले, लेकिन यूसुफ ने आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया और अपना खंजर दिखाते हुए कहा, अब तुम नहीं जा सकते। इब्ने सादक ने कहा, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? हम तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं और अब तुम्हें ये जानना होगा कि हम कौन हैं। ये कहकर यूसुफ ने ताली बजाई और उसका गुलाम ज़ियाद भागता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। वो अपने जिस्म के तूलो अर्ज और शक्ल शुबाहत की हैबत से एक काला देव मालूम होता था। तोंद इस कदर बड़ी हुई थी कि चलते वक्त उसका पेट ऊपर नीचे उछलता हुआ दिखाई देता था। नाक नहायत लंबूतरी और मोटी थी। नीचे का होंठ इस कदर मोटा था कि निचले दांत मसूड़ों तक नजर आते थे। ऊपर के दांत ऊपर के होंठ से मुकाबलतन लंबे थे। आंखें छोटी लेकिन चमकदार थीं। उसने इब्ने सादक की तरफ देखा और अपने आका के हुक्म का इंतजार करने लगा। यूसुफ ने एक रस्सी लाने का हुक्म दिया। ज़ियाद उसी तरह पेट को ऊपर नीचे उछालता हुआ बाहर निकला और रस्सी के अलावा एक कोड़ा भी ले आया। यूसुफ ने कहा, ज़ियाद, इसे रस्सी से जकड़कर इस सुतून के साथ बांध दो। ज़ियाद पहले से ज्यादा खौफनाक शक्ल बनाकर आगे बढ़ा और उसने इब्ने सादक को बाजुओं से पकड़ लिया। इब्ने सादक ने कुछ जद्दोजहद की, लेकिन अपने ताकतवर हरीफ की गिरफ्त में बेबस होकर रह गया। ज़ियाद ने उसे बाजुओं से पकड़कर इस कदर झंझोड़ा कि उसके होशो हवास जाते रहे। उसके बाद नहायत इत्मीनान से उसके हाथ पांव बांधे और एक सुतून के साथ जकड़ दिया। अब्दुल्ला ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और उसके मुंह पर कसकर बांध दिया। यूसुफ ने अब्दुल्ला की तरफ देखा और उससे सवाल किया, अब हमें क्या करना चाहिए? अब्दुल्ला ने जवाब दिया, मैंने सब कुछ सोच लिया है, तुम तैयार हो जाओ और मेरे साथ चलो। तुम्हें उस मकान का पता है जहाँ नईम की बीवी रहती है? हाँ, वो नजदीक ही है। बहुत अच्छा यूसुफ, तुम एक लंबे सफर पर जा रहे हो, फौरन तैयार हो जाओ। यूसुफ लिबास तब्दील करने में मसरूफ हो गया और अब्दुल्ला ने कागज और कलम उठाया और जल्दी जल्दी में खत लिखकर अपनी जेब में डाला। ये खत आप किसके नाम लिख रहे हैं? ये बात इस जलील कुत्ते के सामने बताना करीने मसलहत नहीं, मैं बाहर निकल कर बताऊंगा। आप अपने गुलाम से कह दें कि मैं जिस तरह कहूँ उसी तरह करें। उसे मैं आज सुबह अपने साथ ले जाऊंगा। और इसका क्या होगा? यूसुफ ने अपने सादक की तरफ इशारा करते हुए कहा। अब्दुल्ला ने जवाब दिया, तुम इसकी फिक्र न करो। ज़ियाद को कह दो कि जब तक मैं वापस ना आऊँ उसकी हिफाजत करें। और आपके यहाँ लकड़ी का कोई बड़ा संदूक है जो इस खतरनाक चूहे के लिए पिंजरे का काम दे सके? यूसुफ अब्दुल्ला का मकसद समझकर मुस्कुराया। उसने कहा, हाँ, एक बड़ा संदूक दूसरे कमरे में पड़ा है जो इसके लिए अच्छे खासे पिंजरे का काम दे सकेगा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये कहकर यूसुफ अब्दुल्ला को अपने साथ दूसरे कमरे में ले गया और लकड़ी के एक संदूक की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरे ख्याल में ये आपकी जरूरत को पूरा कर सकेगा। हाँ, ये बहुत अच्छा है, इसे फौरन खाली करो। यूसुफ ने ढकना ऊपर उठाया और संदूक को उठाकर तमाम सामान फर्श पर ढेर कर दिया। अब्दुल्ला ने संदूक के ढकने में से चाकू से 2-3 सुराख कर दिए और कहा, बस अब ठीक है।
ज़ियाद से कहो कि उसे उठाकर दूसरे कमरे में ले जाए। यूसुफ ने ज़ियाद को हुक्म दिया और वो संदूक उठाकर दूसरे कमरे में ले गया। अब्दुल्ला ने कहा, अब तुम ज़ियाद से कहो कि इसकी पूरी पूरी निगरानी करे, और अगर यह आज़ाद होने की कोशिश करे तो फौरन इसका गला घोंट दे। यूसुफ ने ज़ियाद की तरफ देखा और कहा, ज़ियाद, तुम समझते हो तुम्हें क्या करना है? ज़ियाद ने इस बात में सर हिला दिया। इनका हुक्म बिल्कुल मेरा हुक्म समझना। ज़ियाद ने फिर उसी तरह सर हिला दिया। अब्दुल्ला ने कहा, चलो अब देर हो रही है। यूसुफ और अब्दुल्ला कमरे से बाहर निकलने को थे कि यूसुफ कुछ सोचकर रुक गया और बोला, शायद मैं इस शख्स से दोबारा ना मिलूं, मुझे इससे कुछ कहना है। अब्दुल्ला ने कहा, अब ऐसी बातों का वक्त नहीं, कोई लंबी बात नहीं। यूसुफ ने कहा, जरा ठहरिए। ये कहकर यूसुफ इब्ने सादक की तरफ मुतवज्जे हुआ। मैं आपका मकरूज हूँ और अब चाहता हूँ कि आपका थोड़ा बहुत कर्जा अदा कर दूं। देखिए, आपने मोहम्मद बिन कासिम के मुंह पर थूका था, इसलिए मैं आपके मुंह पर थूकता हूँ। ये कहकर उसने इब्ने सादक के मुंह पर थूक दिया। आपने उसके हाथ पर छड़ी भी मारी थी, इसलिए लीजिए। यूसुफ ने उसे एक कोड़ा रसीद करते हुए कहा, आपको याद है कि आपने नईम के मुंह पर थप्पड़ भी मारा था? ये उसका जवाब है। यूसुफ ने यह कहकर जोर से एक थप्पड़ रसीद किया। और आपने नईम के बाल भी नोचे थे? यूसुफ ने उसकी दाढ़ी को जोर जोर से झटके देते हुए कहा। यूसुफ, बच्चे न बनो, जल्दी करो। अब्दुल्ला ने वापस मुड़कर उसे बाजू से पकड़कर खींचते हुए कहा, अच्छा, बाकी फिर सही। ज़ियाद, इसका अच्छी तरह ख्याल रखना। ज़ियाद ने फिर उसी तरह सर हिलाया और यूसुफ अब्दुल्ला के साथ बाहर निकल गया। रास्ते में यूसुफ ने पूछा, आपने क्या तजवीज़ सोची है? अब्दुल्ला ने कहा, सुनो, तुम मुझे नईम की बीवी के मकान पर छोड़कर कैद खाने की तरफ जाओ और नईम को वहां से निकालकर अपने घर ले जाओ। वहां से निकालने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तुमने बताया था कि तुम्हारे पास 2 बेहतरीन घोड़े हैं। मेरा घोड़ा फौजी अस्तबल में है। तुम एक और घोड़े का इंतजाम नहीं कर सकते? इंतजाम तो 10 घोड़ों का भी हो सकता है, लेकिन नईम के अपने 3 घोड़े भी तो उसके घर में मौजूद हैं। अच्छा, तुम नईम को निकालकर अपने घर ले आओ। मैं उतनी देर में उसकी बीवी के साथ शहर के मगरबी दरवाजे के बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम दोनों घर से सवार होकर वहां पहुंच जाओ। अब्दुल्ला ने अपने हाथ से लिखा हुआ खत जेब से निकालकर यूसुफ को देते हुए कहा, तुम यहाँ से सीधे कैरवान जाओगे। वहां का सलारे आला मेरा दोस्त है और नईम का हम मकतब भी रह चुका है। वो तुम्हें स्पेन तक पहुंचाने का बंदोबस्त कर देगा। स्पेन पहुंचकर तेतला के अमीर असाकर अबू उबैदा को यह खत देना। वो तुम्हें फौज में भर्ती कर लेगा। वो मेरा नहायत मुखलिस दोस्त है, आपकी पूरी पूरी हिफाजत करेगा। उसे ये बताने की जरूरत नहीं कि नईम मेरा भाई है। मैंने लिख दिया है कि आप दोनों मेरे दोस्त हैं। किसी और को अपने हालात से आगाह न करना। मैं कुस्तुनतुनिया से आकर अमीरुल मोमिनीन की गलतफहमी दूर करने की कोशिश करूंगा। यूसुफ ने खत लेकर जेब में रख लिया और एक खूबसूरत मकान के दरवाजे पर पहुंचकर बताया कि नईम की बीवी इस जगह रहती है। अब्दुल्ला ने कहा, अच्छा, तुम जाओ और अपना काम होशियारी से करो। बहुत अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। यूसुफ के चंद कदम दूर चले जाने के बाद अब्दुल्ला ने मकान के दरवाजे पर दस्तक दी। बरमक ने अंदर से दरवाजा खोला और अब्दुल्ला को नईम समझते हुए खुशी से उछलकर तातारी जुबान में कहा, आप आ गए? नरगिस बेटा, वो आ गए। अब्दुल्ला शुरू में कुछ अरसा तुर्कस्तान में गुजार चुका था। उसने बरमक का समझकर कहा, मैं उसका भाई हूँ। इतने में नरगिस भागती हुई आई। कौन आ गए? उसने आते हुए पूछा। ये नईम के भाई हैं, बरमक ने जवाब दिया। मैं समझी थी वो। नरगिस का उछलता हुआ दिल बैठ गया और वो आगे कुछ न कह सकी। बहन, मैं नईम का पैगाम लेकर आया हूँ। अब्दुल्ला ने मकान के सहन में दाखिल होकर दरवाजा बंद करते हुए कहा, उनका पैगाम? आप उनसे मिलकर आए हैं? वो कैसे हैं? बताइए बताइए। नरगिस ने आंखों में आंसू लाते हुए कहा, तुम मेरे साथ चलने के लिए फौरन तैयार हो जाओ। कहाँ? नईम से मिलने के लिए। वो कहाँ है? वो आपको शहर से बाहर मिलेंगे। नरगिस ने मशकूक निगाहों से अब्दुल्ला को देखा और कहा, आप तो स्पेन में थे। अब्दुल्ला ने कहा, मैं वहीं से आया हूँ और आज मुझे मालूम हुआ है कि वो कैद में पड़ा हुआ है। मैंने उसे कैद से निकालने का इंतजाम किया है, आप जल्दी करें। बरमक ने कहा, चलिए आप कमरे में चलें, यहाँ अंधेरा है। बरमक, नरगिस और अब्दुल्ला मकान के एक रोशन कमरे में पहुंचे। नरगिस ने अब्दुल्ला को शमा की रोशनी में गौर से देखा। नईम के साथ उसकी गैर मामूली मुशाबिहत देखकर उसे बहुत हद तक इत्मीनान हो गया। हम पैदल जाएंगे? उसने अब्दुल्ला से सवाल किया। नहीं, घोड़ों पर। यह कहकर अब्दुल्ला ने बरमक की तरफ देखकर पूछा, घोड़े कहाँ हैं? उसने जवाब दिया, वो सामने अस्तबल में है।
चलो हम घोड़े तैयार करें। अब्दुल्ला और बरमक ने अस्तबल में पहुंचकर घोड़ों पर जीने डाली। इतने में नरगिस तैयार होकर आ गई। अब्दुल्ला ने उसे एक घोड़े पर सवार कराया और बाकी 2 घोड़ों पर वो और बरमक सवार हो गए। शहर के दरवाजे पर पहरेदारों ने रोका तो अब्दुल्ला ने उन्हें बताया कि वो सुबह के वक्त कुस्तुनतुनिया जाने वाली फौज के साथ शामिल होने के लिए लश्कर की क़यामगाह की तरफ जा रहा है, और सबूत ने खलीफा का हुक्मनामा पेश किया। पहरेदारों ने अदब से झुककर सलाम किया और दरवाजा खोल दिया। दरवाजे से चंद कदम आगे चलकर ये तीनों घोड़ों से उतरे और दरख्तों के साए में खड़े होकर यूसुफ और नईम का इंतजार करने लगे। वो कब आएंगे? नरगिस बार बार बेचैन होकर पूछती। अब्दुल्ला हर बार शफकत अमेज लहजे में जवाब देता, बस वो आ ही रहे होंगे। उन्हें इंतजार में थोड़ा अरसा गुजरा था कि दरवाजे की तरफ से घोड़ों की टाप सुनाई दी। वो आ रहे हैं, अब्दुल्ला ने आहट पाकर कहा। सवारों के आने पर अब्दुल्ला और नरगिस दरख्तों के साए से निकलकर सड़क पर खड़े हो गए। नईम करीब पहुंचकर घोड़े से उतरा और भाई से लिपट गया। अब्दुल्ला ने कहा, अब देर ना करो, सुबह होने वाली है। कैरवान पहुंचने से पहले दम न लेना। बरमक मेरे साथ चलेगा। नईम घोड़े पर सवार हुआ। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अब्दुल्ला ने उसका हाथ पकड़कर चूमा और आंखों से लगा लिया। नईम की आंखों में आंसू आ गए। भाई, अजरा कैसी? नईम ने मगमूम आवाज में सवाल किया। वो अच्छी है। अगर खुदा को मंजूर हुआ तो हम तुम्हें स्पेन में मिलेंगे। इसके बाद अब्दुल्ला ने यूसुफ के साथ मुसाफिहा किया और फिर नरगिस के करीब जाकर अपना हाथ बुलंद किया। नरगिस ने उसका मतलब समझकर सर नीचे झुका दिया। अब्दुल्ला ने शफकत से उसके सर पर हाथ फेरा। नरगिस ने कहा, भाईजान, अजरा से मेरा सलाम कहिए। अच्छा, खुदा हाफिज, अब्दुल्ला ने कहा। उसके जवाब में खुदा हाफिज कहा और घोड़ों की बागी ढीली छोड़ दी। अब्दुल्ला और बरमक कुछ देर वहीं खड़े रहे और जब नईम और उसके साथी रात की तारीकी में गायब हो गए तो ये अपने घोड़ों पर सवार होकर लश्कर की क़यामगाह में पहुंचे। पहरेदारों ने अब्दुल्ला को पहचान कर सलाम किया। बरमक का घोड़ा एक सिपाही के हवाले किया और उसकी सवारी के लिए ऊंट का इंतजाम करके दोबारा शहर की तरफ लौटा। ज़ियाद अपने मालिक से इब्ने सादक का पूरा ख्याल रखने का हुक्म सुन चुका था और उसने इब्ने सादक का इस हद तक ख्याल रखा कि उसके चेहरे से नजर तक न हटाई। जब नींद का गलबा होता तो उठकर उस सतून के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर देता जिसके साथ इब्ने सादक जकड़ा हुआ था। वो इस तन्हाई से तंग आ चुका था। उसे अचानक ख्याल आया और वो इब्ने सादक खड़ा हो गया और उसे गौर से देखने लगा। उसके चेहरे पर अचानक एक खौफनाक मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसने इब्ने सादक की ठोड़ी के नीचे हाथ देकर उसे अपनी तरफ मुतवज्जे किया और उसके मुंह पर थूकने लगा। उसके बाद उसने पूरी ताकत से इब्ने सादक को चंद कोड़े रसीद कर दिए और फिर इसके मुंह पर इस जोर से थप्पड़ मारा कि थोड़ी देर के लिए उस पर बेहोशी तारी हो गई। जब उसे होश आया तो ज़ियाद इसकी दाढ़ी पकड़कर खींचने लगा। जब इब्ने सादक ने बेबस होकर गर्दन ढीली छोड़ दी तो ज़ियाद भी उसकी खुलासी करके थोड़ी देर के लिए उसके गिर्द घूमने लगा। इब्ने सादक ने होश में आकर आंखें खोली तो ज़ियाद ने फिर वही अमल दोहराया। चंद बार ऐसा करने पर जब उसने महसूस किया कि उसकी ताकत कोड़े खाने से जवाब दे चुकी है तो सतून के गिर्द चक्कर लगाने के बाद वो कभी कभी इब्ने सादक की दाढ़ी पकड़कर एक आध झटका दे देता। कभी कभी वो थक कर बैठ जाता और फिर थोड़ी देर के बाद ये दिल लगी शुरू कर देता। जब सुबह की अजान हो रही थी, ज़ियाद ने दरवाजे से बाहर देखा। अब्दुल्ला और बरमक आते दिखाई दिए। उसने आखिरी बार जल्दी जल्दी थूकने, कोड़े मारने, तमांचे रसीद करने और दाढ़ी नोचने का शुगर पूरा करना चाहा। अभी उसने दाढ़ी नोचने की रस्म पूरी तरह अदा न की थी कि अब्दुल्ला और बरमक आ पहुंचे। अब्दुल्ला ने कहा, बेवकूफ, तुम क्या करते हो? इसे जल्दी से संदूक में डालो। ज़ियाद ने फौरन हुक्म की तामील की और इस अदमुए अजहे को संदूक में बंद कर दिया। सूरज निकलते ही अब्दुल्ला अपनी फौज के साथ कुस्तुनतुनिया की तरफ जा रहा था। सामान्य रसद के ऊंटों में से एक ऊंट की पीठ पर एक संदूक पे लदा हुआ था। इस ऊंट की नकेल ज़ियाद की सवारी के ऊंट के दुम से बंधी हुई थी। लश्कर में अब्दुल्ला, बरमक और ज़ियाद के सिवा किसी को मालूम ना था कि इस संदूक में क्या है। अब्दुल्ला के हुक्म से बरमक वे घोड़े पर सवार इस संदूक वाले ऊंट के साथ साथ आ रहा था। नईम, नरगिस और यूसुफ के हमरा कैरवान पहुंचा। वहां से एक लंबी मुसाफा तय करने के बाद कुर्तबा पहुंचा। कुर्तबा से तेतला को रुख किया। वहां पहुंचकर नरगिस को एक सराय में ठहराया और यूसुफ के हमरा अमीर असाकर अबू उबैदा के खिदमत में हाजिर हुआ और अब्दुल्ला का खत पेश किया। अबू उबैदा ने खत खोलकर पढ़ा और यूसुफ और नईम को सर से पांव तक देखा और कहा, आप अब्दुल्ला के दोस्त हैं? आज से मुझे भी अपना दोस्त ख्याल करें। क्या अब्दुल्ला खुद वापस नहीं आएगा? नईम ने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन ने उन्हें कुस्तुनतुनिया की मुहिम पर रवाना किया है। इस जगह उनके कुस्तुनतुनिया से ज्यादा जरूरत थी। तारक और मूसा की जगह लेने वाला कोई नहीं। मैं ज़ईफ हो चुका हूँ।
اور پوری تندہی سے اپنے فرائض ادا نہیں کر سکتا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ملک شام اور عرب سے بہت مختلف ہے۔ یہاں پہاڑی لوگوں کے جنگ کے طریقے بھی ہم سے جدا ہیں، اس لیے بیشتر کہ آپ کو فوج میں کوئی اچھا عہدہ دیا جائے، اس جگہ معمولی سپاہی کی حیثیت سے کافی دیر تک تجربہ حاصل کرنا ہوگا۔ رہا آپ کی حفاظت کا سوال تو اس کے متعلق مطمئن رہیں، اگر امیر المومنین نے آپ کو یہاں تک تلاش کرنے کی کوشش کی تو آپ کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا دیا جائے گا۔ میرا یہ اصول ہے کہ میں کسی شخص کی قابلیت کا امتحان لیے بغیر اسے کسی ذمہ داری پر مامور نہیں کرتا۔ نعیم نے سپہ سالار کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، آپ اطمینان رکھیں، مجھے سپاہیوں کی آخری صف میں رہ کر بھی وہی مسرت حاصل ہوگی جو میں قتیبہ بن مسلم اور محمد بن قاسم کے دائیں ہاتھ پر رہ کر محسوس کیا کرتا تھا۔ آپ کا مطلب ہے کہ ابو عبیدہ نے اپنا فکرہ پورا نہ کیا تھا کہ یوسف بول اٹھا کہ یہ ابن قاسم اور قتیبہ کے مشہور سالاروں میں سے ایک ہے۔ معاف کیجیے گا، مجھے معلوم نہ تھا میں اپنے سے زیادہ قابل اور تجربہ کار سپاہی کے سامنے کھڑا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ابو عبیدہ نے ایک بار نعیم سے پھر مصافحہ کیا۔ میں اب سمجھا کہ آپ امیر المومنین کے زیر عتاب کیوں ہیں۔ یہاں آپ کو کوئی خطرہ نہیں، تاہم احتیاط کے طور پر آج سے آپ کا نام زبیر اور آپ کے دوست کا نام عبدالعزیز ہوگا۔ آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ نعیم نے کہا، ہاں، میری بیوی بھی ساتھ ہے، میں اسے سرائے میں ٹھہرا کر آیا ہوں۔